good evening student. Now today we are going to discuss your first chapter for the class 12, electric field and charge, right? In this chapter we have discussed lot of concepts through the Zoom classes, right? More than 14 plus students are participating in my Zoom classes continuously, right? But due to some network problem, now we are going to discuss this chapter or a remaining topic in this chapter through a video lecture, right? Now, today is my first lecture through the video, right? And I am discussing over here a very important concept related to this chapter, right? Now, my first point is dipole. Dipole, right? Dipole, right? Dipole, इसे आप और बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल. Electric dipole, right? Now, how can we define this point? Particular, this point is a very important point, right? Electric dipole. देखिए, लिखिए, a pair of equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges are separated between a distance is called electric dipole, right? मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, a pair of equal and opposite charges are separated a distance is called electric dipole, right? क्या बोल रहे हैं कि एक हमारे पास पेयर है, राइट? कैसा पेयर है? पेयर कैसा है? इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, राइट? यू हैव अ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मींस सपोज दिस इज अ माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज अ प्लस क्यू चार्ज, राइट? ठीक है. और क्या है? बोथ आर सेपरेटेड बिटवीन अ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, राइट? is called a electric dipole, right? सिंपल सा फंडामेंटल है क्या कि एक पेयर है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो कुछ डिस्टेंस, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है जो रखा हुआ है, राइट? जिसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, गॉट इट माय पॉइंट? बट नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और डिस्टेंस बिटवीन देम. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट? सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. Dipole moment. Dipole moment. Right. Next point is dipole moment. Now, how can we define this point, dipole moment? Right. That's a very simple. It measure the. देखिए, dipole moment क्या होता है? It measure the strength of electric dipole. It measure the strength of electric dipole, right? Is called dipole moment. Dipole moment.
डाइपोल मोमेंट क्या है? मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता हूँ, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। रफ करूँ इसे, नोट कर लीजिए, रफ करता हूँ, आगे का कंसेप्ट फिर चलता है, राइट? मैंने आपको बोला सबसे पहला पॉइंट था मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges are separated between a distance, some distance, right? I am not considering what distance, but I am saying you is some distance, right? Some distances, right? Is called a electric dipole. Now that definition is the dipole moment. Then how can we define it? The dipole moment is basically it measures the strength of electric dipole, right? Basically it measures the strength of electric dipole. Then this fundamental is known as the name of dipole moment, right? Now consider, write down, suppose we have considered two equal and opposite charges like minus q and plus q, right? Are separated between a distance. Distance is that 2a, right? 2a, right? This is the midpoint, point O, right? मैंने सिंपल बोला कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस है. We have two equal and opposite charges are separated by a distance 2a. Now how can we calculate the dipole moment, right? Now dipole moment is dipole moment equal dipole moment equal to either charges multiplied by a vector drawn from negative to positive charge. A vector drawn from negative to positive charges. Negative to positive charges, right? मैंने क्या बोला? Dipole moment is defined as either charges a vector drawn from negative to positive charges, right? How can we write? Simple. Either charges. Suppose we have taken a positive charges, right? लिखा हुआ है, right? मैं क्या लिखूंगा? It's P means vector quantity. लिखा हुआ है negative to positive charges, a vector drawn from negative to positive charges. We are going to negative to positive charges, right? And represent the dipole moment P, right? Its notation of the dipole moment is P, right? चलिए लिखते हैं. तो क्या लिखेंगे? dipole moment is a vector quantity, right? P as a notation point P, right? क्या लिखूंगा मैं? Distance 2a multiplied by q, right? इसे कैसे लिखेंगे? P equal to 2qa, right? P equal to 2qa. It's a dipole moment, right? Write down P equal to 2qa. It's dipole moment. Now, रफ करो. चलिए, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है. नेक्स्ट फंडामेंटल, SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट कैसे शो करेंगे हम? नाउ SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट? आपको पता है P इक्वल टू 2qa, ठीक है. P क्या है? डाइपोल मोमेंट, राइट? इसे क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट, राइट? Q क्या है? चार्ज, राइट? A क्या है? डिस्टेंस, ठीक है. चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? आपको पता है क्या? कूलम, राइट? डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? मीटर.
मीटर। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की एसआई यूनिट क्या लिखेंगे? एसआई यूनिट क्या लिखेंगे? कूलम पर मीटर, राइट। क्या लिखेंगे? कूलम पर मीटर, लिख लिया, कूलम पर मीटर। ओके, next point, now we are moving on a next point is the dipole field, dipole field, dipole field. How can we explain it? Write down. The electric field produced by an electric dipole, the electric field is produced by the electric dipole is known as dipole field, राइट। मैंने क्या बोला आपसे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू प्रोड्यूस कराई जाए उसे हम क्या बोलेंगे? डाइपोल फील्ड। ओके, उसे क्या बोलेंगे हम? डाइपोल फील्ड। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फंडामेंटल इज that's a very important fundamental, so please listen to me very carefully. How can we tackle this type of problem, right? Okay, next concept is electric field at an axial point, electric field at an axial point, electric field at an axial point of an electric dipole, राइट। अब हमें डेरिवेशन देखना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है मुझे कहाँ पर? एक्सियल पॉइंट पर, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायग्राम, राइट। माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, right? Both are shows the electric dipole. Now, first we are making a electric dipole, right? Distance between them is 2a, right? This is the center point. This point is O. Now, at the center point we have choose a point P, where we find out the electric field, right? Where we find out the electric field at this point P, right? This distance is R, okay? This is the electric field at charge minus q, and this is the direction of electric field at point plus q, charge plus q, right?
मैंने एक डायग्राम जनरेट किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डाइपोल बनाया, राइट। ये मैंने क्या बनाया, डाइपोल, राइट। डाइपोल आपको पता है अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बिटवीन द डिस्टेंस 2a, राइट। इसके सेंटर से मैंने r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P चूज किया। इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट अप करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको मैंने बता रखा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखते हो डायरेक्टली, E इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, राइट। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इस फार्मूले का यूज करके मैं ड्यू टू द डाइपोल एक्सियल पॉइंट पर मैं क्या करता हूँ, मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करती है। सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट, ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू अ चार्ज माइनस क्यू, राइट, एट पॉइंट P इज। अब मुझे क्या करना है, हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू चार्जेस। तो फर्स्टली मैंने फर्स्ट स्टेप ये क्या यूज की, मैंने माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, किस पॉइंट पर, पॉइंट Q पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, राइट, यू हैव कैलकुलेटेड दिस डिस्टेंस इज, व्हेन वी आर टॉक अबाउट द डिस्टेंस, दिस इज a, राइट, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इज आल्सो a। चलिए कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट ऑफ करता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप लिखूंगा E माइनस क्यू इक्वल टू, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कैसा है माइनस क्यू, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है पॉइंट से, a डिस्टेंस ये, r डिस्टेंस ये, तो क्या लिखूंगा r प्लस a का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, okay। Now again electric field due to a charge plus q at point P, right। अब प्लस q चार्ज से ये डिस्टेंस में देखोगे कितनी है ये डिस्टेंस, राइट। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल r थी, r से मैंने a माइनस किया, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, रिमेनिंग डिस्टेंस r माइनस a, राइट। अगेन यूज करता हूँ, तो लिखूंगा E प्लस q, राइट, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस a का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो इक्वेशन कैलकुलेट होगी। नाउ अब मुझे क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, राइट। क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी। तो क्या करूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स E इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। चलिए इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल, ठीक है। दोनों को प्लस करता हूं, तो क्या लिखता हूं, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, E प्लस की वैल्यू ये और E माइनस क्यू की वैल्यू ये। चलिए E प्लस क्यू की वैल्यू लिखता हूँ, तो क्या लिखता हूँ, Q डिवाइडेड बाई R माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस a का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पहुँच गए। माइनस साइन यहाँ से हटा के मैं इस प्लेस पर सेट कर देता हूँ, राइट। चलिए कॉमन वैल्यू को बाहर करते हैं, राइट। कॉमन वैल्यू को जैसे ही बाहर करता हूँ तो क्या लिखता हूँ, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट के अंदर क्या आता है हमारे पास
1 डिवाइडेड बाई r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई r प्लस a का होल स्क्वायर, राइट। अगेन सॉल्व करता हूँ, सिंप्लीफाई, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज r माइनस a का होल स्क्वायर एंड r प्लस a का होल स्क्वायर, राइट। This is the denominator part. Now we are going to a numerator part, r plus a का होल स्क्वायर एंड माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। देखिए पूरा सिस्टम समझिए कैसे कैसे किया मैंने। फर्स्टली वी हैव यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। नाउ अगेन we can find the electric field at charge minus q at a point P, right? Now using this formula again, minus q 1/4 pi epsilon minus q divided by r plus a का whole square, right? Again using this formula and find the electric field at point P on a charge q, right? Due to the charge plus q, right? Now again using this formula 1/4 pi epsilon q divided by r minus a का whole square, right? Again using the calculate the net electric field, then net electric field is that is, now putting the all values, right, and common values are outside the bracket and just remaining value are put in a bracket, right. Now taking a LCM, after taking LCM simplify this fundamental and you got the value of electric field. Now going solid, चलिए मैं रफ करता हूँ, ठीक है, और इस फंडामेंटल को समझिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए जितना पहुँचने के बाद सिंपली लिखता हूँ मैं q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डिनोमिनेटर में r माइनस a का होल स्क्वायर एंड r प्लस a का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में यूज करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, राइट। माइनस साइन के साथ में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस 2ra, राइट। r स्क्वायर a स्क्वायर r स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। राइट डाउन द रिमेनिंग वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 2ra प्लस 2ra मीन्स 4ra, ठीक है। नीचे सॉल्व करूंगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अगेन मल्टीप्लाई द q इन अ ब्रैकेट, राइट, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 q a into r, right, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इसे मैंने कैसे किया, ठीक है, 4 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, q को अंदर मल्टीप्लाई किया तो q a, राइट, q a आ गया, एक रिमेनिंग r बचा हुआ तो वो मैंने पुट कर दिया, राइट। तो टोटल वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब आपको पता है ये 2qa क्या बन गया, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p और r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। आपको पता है क्या, p इक्वल टू 2qa, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन राइट ओवर हियर 2qa in place of 2qa is p means dipole moment, right, p means dipole moment। यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, रफ करता हूँ इधर रफ करता हूँ। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप, r is much greater than a, then r square is also much greater than a square, then a square is neglected, then a square is neglected। Now
When a square is neglected, then 1 divided by 4 pi epsilon naught in a bracket 2 p r divided by r की power 4, right? This r is cancelled out and 1 divided by 4 pi epsilon naught a and 2p divided by r cube, right? This is the net electric field. This is the net electric field on axial point due to a dipole, right? देखिए पूरा डेरिवेशन समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? गुड, लव करो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, we are going to a next concept for a dipole. Okay, next fundamental is electric field at an equatorial point. Electric field at an equatorial electric field at an equatorial point of a dipole, right? अब मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, राइट, ड्यू टू द डाइपोल। फर्स्ट क्या करेंगे आप? फर्स्ट ये डाइपोल डेवलप करेंगे, माइनस क्यू प्लस क्यू, राइट? दिस इज अ डाइपोल, दिस इज द सेंटर पॉइंट, राइट? This point P, right? This and this have an equal distance, right? Okay. Now here, and here, right? This is the E plus Q and E minus Q. Okay, this is E equatorial. Okay, this is angle theta. Opposite angle is also theta, right? If this is theta, then this is also theta. Okay, this is theta, this is also theta. Any problem? Right? This distance is A, this is the center O, and this distance is R. ठीक है? This is A. ठीक है? चलिए, हो गया काम? पॉइंट लिख लीजिए आपका A and B। डायग्राम मैंने बना दिया। ठीक है, मैंने क्या किया? एक डाइपोल मोमेंट लिया, राइट? डाइपोल से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया। इस पॉइंट P पर मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट P कैसा है, राइट? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, दोनों पॉइंट से कैसा है? इक्वेटोरियल पॉइंट पर, राइट? ठीक है, मैंने क्या किया? इसका रिजल्टेंट निकाला, राइट? तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन में, इन दोनों का निकाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटसाइड डायरेक्शन में, राइट, इनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं? इसके मेन पॉइंट पर आते हैं, कैसे इसे सॉल्व करते हैं, राइट? तो सिंपल लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
plus Q, right? Due to a charge plus Q. Now we are going to calculate the electric field at point P due to the charge plus Q. How can we write the equation of electric field, right? So you know the formula of electric field. So E equal to 1 upon 4 pi epsilon, right? Q divided by R square. Now first we are going to calculate the distance of this distance. How can we calculate the distance? Right? So this is the A, this is the R, right? This point O, this point B, and this point P. Using a Pythagoras theorem, right? Using a Pythagoras theorem, then you can calculate the value of this PB, right? Okay, what is the distance of PB? This distance is calculated through the Pythagoras theorem, right? So what is the distance? PB. ठीक है, चलिए लिखते हैं कैसे? सिंपल. E plus Q equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught, and charge plus Q, distance R square plus A square, right? R square plus A square. This is the equation number first. Okay. Next, again electric field at point P due to a charge minus Q. E minus Q equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught minus Q divided by R square plus A square, right? Equation number 2. Okay, equation number 2 कर दिया. अब हमें क्या देखना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एट पॉइंट P पर निकालूंगा ड्यू टू द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो क्या लिखेंगे? देखो इक्वेटोरियल का मीन्स क्या हो गया? E plus Q equal to E minus Q, right? This is shows the equatorial point, right? This is shows the equatorial point, right? अगर मैं इक्वेटोरियल पॉइंट बोलूंगा तो दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. तो आपने देखा कि दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है? इक्वल आ रही है, राइट? बस नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, ठीक है? अब इसे क्यों है ऐसा? चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? ऐसा क्यों है? ठीक, why we are using this negative sign, right? चलिए write down the component of minus Q and plus Q normal to the dipole axis, normal to the dipole axis, okay? Normal to the dipole axis will cancel out, okay? Will cancel out, and parallel to the dipole axis is add up. Now we have discussing a very important fundament. चलिए इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है? और जो बताने जा रहा हूँ उसे मैं देखिए आप केयरफुली, ठीक है? केयरफुली से देखिए. ये पॉइंट क्या था? E इक्वेटोरियल, राइट? चलिए दिस एंगल इज थीटा, राइट? दिस एंगल इज थीटा. नाउ अगर मैं इसके कंपोनेंट लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा? इसके कंपोनेंट कैसे लिखूंगा? देखिए ऐसे बना हुआ है, समझिएगा, इस तरह से और इस तरह से बना हुआ है. ये एंगल थीटा है, इसे मैंने लिखा हुआ है E माइनस क्यू, राइट? ठीक है, E माइनस क्यू. इसके कंपोनेंट मुझे लिखने हैं, ठीक है? और ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? E माइनस क्यू. अगर ये थीटा है, राइट, इसके रिजल्टेंट हमारा क्या है? E माइनस क्यू. तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसके कंपोनेंट लिखता हूँ तो इसे क्या लिखूंगा? E माइनस क्यू कॉज ऑफ थीटा, और इसे क्या लिखूंगा? E माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा, राइट? ऐसे लिखा. सेम अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन पे चलता हूँ, E प्लस क्यू को लेता हूँ, राइट? तो ऐसे बना हुआ है, देखिए, ठीक है? E इक्वेटोरियल ऐसे है, ये एंगल थीटा है, राइट? अब ऐसे करूंगा, ठीक है? ये E प्लस क्यू है, राइट? चलिए इसके रिस्पेक्ट में लिखता हूं तो इसे क्या लिखूंगा? ठीक है, ऐसे बनेगा. ये वाला क्या लिखूंगा? E
प्लस क्यू साइन ऑफ थीटा, राइट। और इसे क्या लिखूंगा, ई प्लस क्यू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। चलिए इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूं, ठीक है, इस डायग्राम को इसके साथ में लाता हूं तो देखिए सिंपल सी बात है, ऐसे बना हुआ है। इसे मैं लिखूंगा तो लिखूंगा ई माइनस क्यू, इस डायग्राम को मैं इसके साथ में कंबाइन कर रहा हूँ, राइट। और इसे ऐसे लेके आता हूँ तो इसे क्या लिखूंगा, ई माइनस क्यू साइन ऑफ थीटा, राइट। तो ये दोनों कैसे हैं, नॉर्मली एक्ट हो रहे हैं, राइट। इसे मैं रफ कर रहा हूँ, राइट, इसे मैंने रफ कर दिया। इस डायरेक्शन में एक और आ रहा था क्या, ई माइनस क्यू कॉज ऑफ थीटा। ये दोनों कैसे हैं, नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के नॉर्मली एक्ट हैं। तो ये दो कंपोनेंट हमारे कैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट अगर इसको इससे कंपेयर करता हूं तो देखिए डाइपोल हमारा कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, राइट। और इक्वेटोरियल पॉइंट कैसे है हमारे, हॉरिजॉन्टल है। मींस अगर इन दोनों को मैं पास में रखता हूं, इस पॉइंट पर मैं चेक करता हूं, ठीक है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, राइट, ये इक्वेटोरियल पॉइंट है और ये हमारा डाइपोल मोमेंट वाला पॉइंट है। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, राइट। तो पैरेलल वाले कंपोनेंट हम क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे, और जो कंपोनेंट हमारे नॉर्मली एक्ट हो रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ओके। पैरेलल वाले हम क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे। चलिए रफ करता हूँ, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, रफ करता हूँ। चलिए देखिएगा, मैंने इन्हें कैंसिल आउट कर दिया और पैरेलल वाले कंपोनेंट में क्या करने जा रहा हूँ, ऐड अप करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐड अप करने जा रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, राइट डाउन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल, E equatorial, the total electric field E equatorial to P, E equatorial to point P, right, क्या लिखूंगा, E equal to, write down, E equal to, E means E equatorial equal to, दो कंपोनेंट थे हमारे cos थीटा के, जिन्हें हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। तो ऐड अप करेंगे तो क्या लिखेंगे, E माइनस क्यू कॉज ऑफ थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉज ऑफ थीटा, राइट। कर दिया। साथ में क्या होगा, जो डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर पी, साथ में डाल दूंगा यूनिट वेक्टर पी। हो गया काम। इतना काम करने के बाद सिंपल सा है, इसे क्या लिखूंगा, माइनस 2 टाइम ई क्यू cos of theta minus 2 times EQ cos of theta, right, and unit vector P। ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे E माइनस क्यू इक्वल टू E क्यू, राइट, E क्यू कर दिया। इतना काम करने के बाद, राइट, अब चलते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है आपको, cos थीटा की वैल्यू लिखनी है। cos थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर थीटा आपका ये है तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिखते हो, आपको पता है क्या, बताइए, sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ये टेंथ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए करते हैं। पहली वैल्यू हमारी साइन की होती है, दूसरी वैल्यू कॉस की होती है, थर्ड वैल्यू टेन की होती है। तो कॉस का मीन्स क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपके पास ए और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखूंगा तो माइनस 2 टाइम मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, cos थीटा की वैल्यू लिखूंगा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
राइट, इंटू यूनिट वेक्टर p। पहुंच गए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर p, तब पहुंच गए। ओके, चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराता हूं तो देखिए क्या आता है, -2, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q इंटू ए डिवाइडेड बाई, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो क्या लिखता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, राइट, इंटू यूनिट वेक्टर p। ओके, अब यहाँ से देखिए 2qa ऊपर बन रहा है, जैसे कैसे लिखूंगा, -1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2qa मिलकर बन गया p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू यूनिट वेक्टर p। यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, इसे रफ करता हूँ, ऊपर आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाई पड़े। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, कहाँ पहुँचे, -1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p डिवाइडेड बाई, आपके पास आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 एंड यूनिट वेक्टर p, ठीक है। ये सारा मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके। इतना काम होने के बाद अभी आपको क्या लिखना है, आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, ए स्क्वायर को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, तो अभी हमारे पास क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन के साथ में p डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 कैंसिल आउट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई p डिवाइडेड बाई r की पावर 3 माइनस साइन के साथ में, ओके, माइनस साइन के साथ में इनटू यूनिट वेक्टर p। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया, E इक्वेटोरियल इक्वल टू, क्या लिखूंगा, -1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, p डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर p। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, देख लीजिए इस डायग्राम को, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज, ठीक है। I think all of you getting properly what I'm saying, what I'm discussing, how can we solve each and everything, got it carefully, I think so. Now again we are going to discuss a very important concept. Concept is that, चलिए देखिए अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अभी आपने देखा E मैंने एक्सियल कैलकुलेट किया था, ठीक है, E एक्सियल की वैल्यू कैलकुलेट की थी तो हमारे पास क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट, ऐसे आया था, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब। और E इक्वेटोरियल अगर मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p डिवाइडेड बाई r क्यूब। देखिए दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इस प्लेस पर न्यूमेरिक वैल्यू 2 है, मीन्स इसका प्रोडक्ट 2 है, 2 टाइम है किसके, इक्वेटोरियल के, राइट, इक्वेटोरियल की एक्सियल वाली वैल्यू क्या है, 2 टाइम है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखोगे बताइए, E एक्सियल इक्वल टू E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम ऑफ E इक्वेटोरियल, राइट, इसे याद रखिएगा। अगर E एक्सियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या आपके पास इक्वेटोरियल की वैल्यू है इक्वेटोरियल की, तो उसे आप क्या करोगे, डबल करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक्सियल की वैल्यू, राइट, डबल करोगे तो एक्सियल की वैल्यू निकल आएगा। अगर एक्सियल की वैल्यू आपके पास है और
और इक्वेटोरियल में लिखना है तो उसका हाफ कर दोगे तो आपको क्या निकल आएगा, इक्वेटोरियल की वैल्यू निकल आएगी, राइट। अब करूँ, गुड। नाउ next concept is torque. Next concept is torque on a dipole in a uniform electric field. Torque on a dipole, torque on a dipole in a uniform electric field. राइट। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है टॉर्क, राइट। टॉर्क कैलकुलेट करना है जब डाइपोल हमारा कहाँ रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। चलिए वन बाय वन मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, राइट। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, बनाया इसका डायग्राम मैंने 4 and 5, राइट। यहाँ पर मैंने ये डाइपोल सेट किया। डाइपोल आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, राइट। ठीक है, ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, राइट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन है। चलिए मैंने क्या किया, एक डाइपोल बना दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट। अब अगर ये डाइपोल रोटेट करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा, तो कैसे जनरेट करेगा, जब इसके एंड पॉइंट पर हमारे पास किसी फोर्स का एक्सपीरियंस हो, राइट, कोई फोर्स इस पर एक्ट हो रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला शायद मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ था, राइट। वो फार्मूला क्या है, आप लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड E = F/Q, राइट। यहाँ से अगर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q × E, राइट। ये फोर्स कब कैलकुलेट होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास गिवन हो, राइट। इस फॉर्मूले का मैं इस फंडामेंटल में यूज करूंगा, तो कैसे यूज करूंगा, इस पॉइंट पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या लिखोगे आप, Q × E, राइट, Q × E। और इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू जो लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, -Q × E, माइनस साइन क्यों, बिकॉज ऑफ दैट चार्ज इज -q, राइट। चलिए डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, राइट। ऐसे बना के लाया, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा जनरेट करता है, राइट, थीटा एंगल से रोटेट करता है, ठीक है। मैंने एंगल बताया थीटा, राइट। तो थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट बनाऊंगा, राइट। ये डिस्टेंस आपको पता है ऑलरेडी कितनी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है आपके पास 2a, राइट। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास 2a, राइट। ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 2a। चलिए इस रिजल्टेंट हमारा 2a, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2a cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट 2a sin थीटा, राइट। 2a sin ऑफ थीटा, ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू क्या है 2a sin थीटा, राइट। चलिए लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E मेकिंग एन एंगल थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड E making an angle theta, making an angle theta with it then अब मुझे क्या करना है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है आपको क्या कर रहा है, एक एंगल थीटा जनरेट कर रहा है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, इसका डाइपोल, तो P = 2QA, राइट। P = 2QA। अब लिखेंगे फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस Q बाय इलेक्ट्रिक फील्ड E, फोर्स एक्सर्टेड on charge Q
Q on charge Q by field E is plus QE, right? F plus QE equal to क्या लिखेंगे QE. Same thing, force exerted on charge minus Q by field E is F minus Q equal to also QE, right? Also QE, ठीक है, माइनस साइन के साथ में. अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगा F रिजल्टेंट, ठीक है, क्या लिखूंगा QE एंड माइनस QE कैंसिल हो, जीरो, राइट? रिजल्टेंट फोर्स क्या आया? जीरो. रिजल्टेंट फोर्स आया जीरो. चलिए रफ करता हूं. रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो, राइट? एफ टोटल क्या है हमारे पास? एफ टोटल इक्वल टू जीरो, राइट? एफ टोटल हमारे पास क्या आया? जीरो. टोटल फोर्स की वैल्यू क्या है? मींस रिजल्टेंट फोर्स क्या आया इसका? जीरो, राइट? टोटल फोर्स मैंने कैलकुलेट किया तो क्या वैल्यू आई? जीरो. चलिए लिखता हूं टॉर्क. टॉर्क इक्वल टू, लिखेंगे टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स multiplied by perpendicular distance between the two forces. Either forces multiplied by the perpendicular distance between two forces, right? क्या लिखूंगा? Either forces multiplied by perpendicular distances. तो फोर्स की वैल्यू आपको पता है, क्या लिखा था आपने? QE, राइट? फोर्स की वैल्यू क्या लिखी थी आपने? QE. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी? 2a sin थीटा, 2a sin ऑफ थीटा, राइट? चलिए लिखता हूँ 2QA, 2a ये और QA, तो मैं ऐसे लिख दिया 2QA मल्टीप्लाइड बाई E sin ऑफ थीटा, राइट? और 2QA क्या बन गया? P, क्या लिखा मैंने? E sin ऑफ थीटा. ये क्या बन के आ गया? टॉर्क, टाउ की वैल्यू, राइट? टाउ इक्वल टू क्या निकल के आया आपके पास? PE sin ऑफ थीटा. टाउ इक्वल टू क्या आ गया? PE sin ऑफ theta. Due to this formula you can calculate the what? Torque. Calculate the value of torque in a uniform electric field due to a dipole. Okay. Now have a nice day. Now we will be meet on my next video, right? With a new concept related to this chapter. So please carefully learn all these fundamentals, right? And have a nice day.